aspirants, welcome to my channel Study Revolution. This is our first session which is a demo session. जी हाँ, ये हमारा first session है और demo session है and you will be surprised if I'll tell you about the topic that I'm gonna pick today for our first session. जी हाँ, आप सरप्राइज फील करेंगे और वो टॉपिक है that topic is most vast topic and having weightage, highest weightage on this topic in every exam, whether it is CAT, CLAT, CMAT, CSAT, CRT examination, banking SSC and railways. Yes, you can guess it. I'll tell you that topic is data interpretation. जी हाँ, हम डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, हमारे डेमो सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अलग तरीके से। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, डेटा इंटरप्रिटेशन हम अलग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, बट आज जो मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाऊंगा ना आपने कभी पहले पढ़ा है और ना आप शायद इसके बाद कहीं पढ़ेंगे. This will be the first and the last way in the last time that you're gonna see this kind of approach in any platform. कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, you will develop an approach. You will learn it in a different manner, in a different approach, and you will learn it with different. You will build a different approach. I'll give you the guarantee. Okay? So बिना समय गवाए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ. आज का जो टॉपिक है that is data interpretation. Okay guys, so today's session is a demo session and we're going to pick one of the important topic that is DI. आप इसे ऐसे पकड़ के चलिए, we're going to make a basic strategy regarding BI, how to develop an approach for DI. Okay, data interpretation के लिए जो approach होता है वो हम develop करेंगे. ये पूरा DI section नहीं है. DI section के लिए हम अलग से एक नया session लेंगे, एक नया video create करेंगे. Now we'll start with the session. Data interpretation. As the name suggests, what do you mean by data? Data क्या होता है भाई? Raw form of information. Raw form of information. It is called as data. Now what is raw form of information? जैसे कि alphabets होते हैं, we'll start with A. Now we'll add some letters, फिर some alphabets. It will make a word. Okay. Then word will form a sentence. Sentence will form paragraph. So ultimately paragraph का जो basic unit है वो क्या है? It is alphabet, right? So what do you mean by this raw information? Raw information is nothing but smallest unit of smallest unit of information. Okay, smallest unit of information is called as raw information. Raw information means data. Okay, getting my point? Okay, this is data, smallest form of information. Okay, I guess I'm getting some noise. Just give me 1 minute. Now we'll know about interpretation. What do you mean by interpretation? Let's have a check regarding interpretation. No, this is interpretation. Interpretation means क्या होता है? Line by line execution. Line by line execution. Line by line execution. Now what do you mean by line execution? Right? अब let's take pages. पेजेस से हम बनाते हैं बाइंडिंग करके, फाइल से बनाते हैं हम कंपाइलेशन से उसका एक स्टॉक, दैट लाइब्रेरी, एंड वी कॉल इट एज कंपाइलेशन. राइट? इन कंपाइलेशन व्हाट वी डू, वी सिलेक्ट अ फाइल रैंडमली विच इज रिक्वायर्ड. या फिर ये तो फिर भी थोड़ा सा एक हमने एक टफेस्ट एग्जांपल लिया है. हमने कंपाइलेशन के बारे में सुना होगा. ठीक है, कंपाइलेशन में जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया. आई हैव रेड अ पैराग्राफ एंड आई हैव गिवन यू अ नटशेल आइडिया व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ, या फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसे कहते हैं.
Okay, a brief idea what is given in this paragraph, that is called as compilation. Okay, और compilation कौन करता है? Compiler. ठीक है, असेंबलर भी एक होता है, बट आई विल नॉट गो टू दैट पॉइंट एट मच, ये वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन क्या होता है? जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी फॉर्म में लिखा हुआ है, अ सिंगल लाइन, मैं उस सिंगल लाइन का मीनिंग बता रहा हूँ। आई एम I'm trying to tell you a meaning line by line. That's why it is called as line by line execution, right? So what do you mean by data interpretation? अगर मैं define करने जाऊँ data interpretation को, so the pictorial or the pictorial or diagrammatic representation or representation of line by line execution of data. ठीक है, तो डिफाइन, आई गेस माई हैंडराइटिंग इज नॉट सो गुड, बट आई गेस यू पीपल विल come to know what is data interpretation. Data interpretation is nothing but the pictorial or diagrammatic representation of line by line execution of data. Okay, जो भी डेटा है उसका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन किया जाएगा और उसको पिक्टोरियल डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, आई गेस यू कम टू नो अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन. नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूटेज है, यूसेज है. you have never seen its usage, you have never felt that this is the thing that, oh, this is the data interpretation I have already implemented in my day to day life, but I still don't know. ओके, सो जो एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्स में जो पिक किए जाते हैं वो आपके डे टू डे लाइफ के ही होते हैं, बस आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो. ठीक है, एंड वहीं से तो कॉन्सेप्ट जनरेट होता है. दिस डेटा इंटरप्रिटेशन आल्सो इज बीन जनरेटेड फ्रॉम देयर. लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, यू विल कम टू नो. फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन, 1228 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, which is in Mumbai, नागपुर दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3. अब ये इंफॉर्मेशन से मुझे पता चलता है, एक तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स हम लोग पिक कर लेते हैं. सबसे पहले तो दिया हुआ है ट्रेन नंबर. ओके, ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम दिया हुआ है, नेम ऑफ द ट्रेन. ओके, देन इट्स प्लेटफॉर्म नंबर, ऑफ कोर्स, कहाँ से कहाँ जाने वाली है, दैट मीन्स डेस्टिनेशन भी दिया हुआ है. And now the thing which is not mentioned, that is timing, arrival time and departure time. ये चीज नहीं दी हुई है. तो यही से समझ में आता है कि किस फॉर्म का DI बनेगा. This form will be considered as tabular form of DI. Okay, tabular form of DI. Right. So the first train is one. I'm not so good at drawing. Kindly consider that point also. 12289. Train number and train name is Chhatrapati Shivaji Maharaj, that is CST, Nagpur Duranto Express. Duranto, okay, Duranto Express has arrived on platform number 3. Arrived, okay, platform number 3. इसका destination नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस. CST is मुंबई, नागपुर. वहां पे तो आपको पूरा डेटा दिया जाएगा. अगर डेटा इंटरप्रिटेशन में मैं जस्ट रॉ डेटा से इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ. CST इज इन मुंबई, नागपुर दुरंतो, दैट मीन्स मुंबई टू नागपुर ही जाने वाला. अराइव वह कहाँ पे हुई है? नागपुर, क्योंकि मैंने बता दिया है कि ये डेटा मैंने नागपुर स्टेशन से पिक किया हुआ है. सो अराइव, लेट्स से अराइवल टाइम इज मॉर्निंग 10:33, ओके, AM. ओके, डिपार्चर की तो बात ही नहीं होती है, यहाँ पे अराइवल हुई है. डेस्टिनेशन वॉज नागपुर. ठीक है, ये पहला हमारा डेटा सेट मिल गया हमको. नाउ 26102, 26102 पुणे वंदे भारत. इट्स वंदे भारत. hmm? Has arrived on platform number 5. It is arrived.
डेस्टिनेशन हमें पता नहीं है पुणे वंदे भारत का, आई विल टेक इट एज नागपुर। ओके, वहां पे मेंशन किया जाएगा। अगर आपको ऐसा कोई सेट ऑफ क्वेश्चन मिलता है तो आपको वहां पे दिया जाएगा, बट जस्ट वी आर टेकिंग अ डेमो सेशन, what is the basic behind data interpretation, just we are taking. So it is arrived on Nagpur platform. I'll take it as 12 o'clock in the noon. Okay, then the second thing is been completed. Third thing is 11040 Chhatrapati Shahu Maharaj terminus Nagpur to Solapur express. And Chhatrapati Shahu Maharaj, that is, it is going to Solapur, that's for sure. It is it सोलापुर एक्सप्रेस विल डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 7, मतलब नागपुर से वो डिपार्ट करने वाली है। दैट मीन्स डेस्टिनेशन विल बी सोलापुर, दैट्स फॉर श्योर। डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 7। डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, नाउ इट डजंट मैटर, बट यस डिपार्चर टाइम उसने मान लीजिए 1 o'clock दिया है। आई एम कंसिडरिंग इट फ्रॉम माई एंड। ओके, दिस इज द थिंग विच इज नॉट बीन मेंशन इन दिस पर्टिकुलर डेटा। एंड महाराष्ट्र एक्सप्रेस, ठीक है। This is the third parameter we have completed. Now the last parameter we have been, this is Rajdhani Express 12482, 12482 राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस आपको पता है कहाँ जाने वाली है, दिल्ली जाने वाली है। सो यहाँ पे क्या दिया, विल डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर, डिपार्ट होने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 8 से टू दिल्ली, डेस्टिनेशन विल बी दिल्ली। ओके, अगर किसी को पता ना हो मैं बता देता हूँ, ये जाती है आपका हजरत निजामुद्दीन टर्मिनल। ओके, सो इसका लेट्स टेक departure time will take 2 o'clock in the afternoon. Okay, so this is the data set that we have created. I could have selected a shape from here, but still मैंने अपने हाथों से बनाया। I'm not so good at drawing, but kindly consider this point also, and I hope this is visible to you and you can uh, you know make a notes of it, make a note of it, and you can check it, okay, from your end। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कितना इजी हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन, आप खामखा इससे डर रहे थे और अब देखिए कितना इजीली हमने इसको पिक कर लिया है। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है, सेल्स अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। सी, हाफ ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ड ही सजेस्ट करता है कि किस टाइप का डीआई होने वाला है। देखिए हाफ ऑफ टोटल, ये हाफ तो ठीक है, एक पार्ट हो गया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, मे बी चॉकलेट्स, मे बी फूड, मे बी शेयर, मे बी इन्वेस्टमेंट, समथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ अ मेजर पार्ट। सो मेजर पार्ट विल बी दिस, मेजर पार्ट विल बी दिस सर्कल। मान के चलते हैं हम, इसका 50% कौन कवर करने वाला है, शेयर, सेल्स, ठीक है। मार्केटिंग रिप्रेजेंट 25%, then 15% will be covered by operations and HR will cover around 10%। ओके, अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बात, देखिए सबसे पहले तो ये सर्कल है, सर्कल का जो सेंट्रल एंगल मतलब जो थीटा होता है दैट इज ऑफ 360 डिग्री, राइट। एंड यहाँ से लेके अगर मैं शुरुआत करता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट बैक टू दिस पॉइंट, है ना, कंप्लीटली दिस इज 100%। कैसे, अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, चलिए चलते 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 चलिए 50% कवर किया, फिर और 25% कवर किया, फिर और 15% कवर किया, फिर और 10% कवर किया, करते करते कितने परसेंट कंप्लीट हो गए, 100%। दैट मीन्स 360 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 100%, राइट। 360 डिग्री will be converted as 100%, right? So this is the thing that we got। और ये सबसे ब्रीफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक यू शुड नोट इट डाउन। ठीक है, अब समझ में आया कि इसका 100% क्या चीज होता है, 360 डिग्री इज वाई इट इज इक्वल टू 100%। ठीक है, और देखिए ये बन गया आपका पाई चार्ट, कितना इजीली बन गया पाई चार्ट, और आप खामखा डर रहे थे डीआई से। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, वन मोर DI we have to solve।
ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम जनवरी टू मई। ये समझ में आता है, अपवर्ड ट्रेंड इसका मतलब ये ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, वो नहीं पता, बट ग्राफ है। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। हियर इट इज 0। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ठीक है, 100। द वैल्यू इज इंक्रीज्ड, यहाँ पे क्या दिया है? द वैल्यू इज इंक्रीज स्टेडली फ्रॉम 100 इन जनवरी टू 150 इन मार्च। मतलब थ्रू आउट जनवरी टू मार्च जो है वो 150 तक, 100 से 150 तक। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 100, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 एंड सो वन। 200 अगर होगा तो 200 भी बना लेंगे, ठीक है। सो जनवरी में 100 था, दैट मीन्स दिस इज जनवरी, दिस पॉइंट इज जनवरी, दिस इज 100, ये पॉइंट बन गया आपका। यहां से लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है। स्टेडी इंक्रीमेंट बोला है मार्च में, कहाँ तक? 150 तक, ठीक है। ठीक है, मैंने एंगल थोड़ा गलत ले लिया है, बट ठीक है, वी कैन मेक इट। दिस इज 150, ओके। Then when figure when the okay, a slight decline was observed in April when the figure dropped to 130। अच्छा, फिगर जो है अप्रैल में ड्रॉप हो गया। चलो भाई, ड्रॉप हो गया। And then however the value rebounded strongly in May। However the value is strongly in May, reaching the highest point of 180। ठीक है, ये रहा भाई आपका 180। ये बन गया आपका लाइन ग्राफ। द ग्राफ इंडिकेट्स द सिग्निफिकेंट ओवरऑल ग्रोथ। ग्राफ बोला ही है यहाँ पर, हमको ये नहीं पता था अब लाइन ग्राफ है या बार ग्राफ है। अब पता चल गया कि भाई लाइन ग्राफ है। दैट्स इट, वी हैव मेड द लाइन ग्राफ ऑल्सो। सो देखिए, डे टू डे लाइफ में आपके होते हैं ये। आपने वैगन व्हील, जैसे हमने ट्रेन का एग्जांपल देख लिया, सबसे पहला जो टेबुलर था। इंडिया में क्रिकेट एक बहुत बड़ा इमोशन है, और आपने बहुत बार देखा होगा वैगन व्हील जिसको कहते हैं, जिसमें किसी प्लेयर का जो होता है उसमें स्कोरिंग चार्ट दिखाया जाता है। मीन्स लेग साइड में इतना परसेंट, ऑफ साइड में इतना परसेंट, स्ट्रेट ड्राइव इतना खेला गया, डाउन द ग्राउंड इतना खेला गया। तो वो एक पाई चार्ट बना के बताते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो लाइन ग्राफ है, आपने देखा होगा रन रेट के साथ, रन रेट के लिए भी आप वही देखा होगा आपने क्रिकेट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। Product A sold 50 units, product B sold 80 units. Which is the highest among the three? Product C sold uh, 30 units. Overall, product B performed the best. C is lagged behind. Draw the diagram. Draw the diagram means again ये होने जा रहा है आपका ग्राफ। कौन सा ग्राफ अभी हाल फिलहाल नहीं पता, बट ग्राफ होगा। तो हम लोग पहले 50 वगैरह 30 दिया है, तो हम लोग मेजर करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ठीक है, ये दिस इज जस्ट अ रॉ डायग्राम। ठीक है, हम लोग रॉ डायग्राम बनाए जिससे हम पता करें कि मतलब एक्चुअल में बेसिक बिहाइंड DI क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक और सरप्राइज चीज बताऊंगा, ये कंप्लीट होने का सरप्राइज एलिमेंट कि क्या होने वाला है। तो ए प्रोडक्ट ने कितना किया है? प्रोडक्ट बी हैज सोल्ड 80, मतलब 80 यानी सबसे हाईएस्ट उसने प्रोडक्ट बी ने सोल्ड किया है। ठीक है, अगेन डायग्राम इज नॉट सो गुड, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। प्रोडक्ट सी हैज सोल्ड 30। चलिए भाई, प्रोडक्ट सी ने 30 तक सोल्ड किया, मान लिया। which is lowest of all the product B performed best while product C lagged behind। प्रोडक्ट ए हैज सोल्ड 50। ठीक है, और प्रोडक्ट डी ने तो कुछ किया ही नहीं है, प्रोडक्ट डी का मेंशन ही नहीं। हो गया आपका बार डायग्राम। दिस इज द बार डायग्राम। और अगर मैं स्केल की बात करूं, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। इजंट इट? ये हो गया आपका बार ग्राफ। हो गया इजी।
अब आपको बताओ इसमें क्या फायदा हुआ, क्या अप्रोच डेवलप हुआ? सबसे पहले आपको ये पता चला कि व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। सेकेंडली आपको इसका अप्रोच पता चला। अब आज आज तक आप लोग बहुत गलत अप्रोच से पढ़ते थे, आप डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर भागते थे, आप डेटा की तरफ नहीं देखते थे। नाउ यू कम टू नो द डेटाज इंपॉर्टेंस। थर्ड, नहीं कहते कहते या डिलिबरेटली बोलो या इंटेंशनली बोलो या अनइंटेंशनली बोलो, मैंने आपके लिए केसलेट डीआई जो है उसका बेसिक फॉर्म कर दिया है। बेसिक फॉर्म। ओके। ओके, ये तो बात हुई आपकी एप्टीट्यूड की, मतलब मैथमेटिक्स की। रीजनिंग में वेन डायग्राम आते हैं सिलोलिज्म के, जैसे कि हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, है ना? सो ये जो सारी चीजें हम इसको रिलेशनल सिलोलिज्म बोलते हैं, उसका भी बेसिक पार्ट बन गया। तो देखिए हमने एक ही सेशन में क्या कुछ नहीं सीख लिया। एक तो हमने अप्रोच डेवलप कर दिया। अब से ये मैंने तो शुरुआत की है। जब हम कोर्स जब तक कंप्लीट करेंगे तब तक आपका एक नया अप्रोच ही डेवलप हो चुका होगा, ठीक है? आप हमेशा मार्क्स के पीछे भागे हो, हमें मार्क्स के पीछे नहीं भागना, हमें इतना फाउंडेशन मजबूत करना है कि कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए हम उसको आराम से सॉल्व कर सकें, ठीक है? सो दिस वाज द थिंकिंग बिहाइंड दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन आई टेल यू व्हाट विल बी व्हाट आई कम विथ। सबसे पहले तो मैं इनकी बात करना चाह रहा हूँ। ये है महान दार्शनिक और ग्रेट फिलोसोफर, नेम इज प्लेटो। प्लेटो का शायद आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। ग्रीक फिलोसोफर ही वॉज, ऑफ कोर्स फ्रॉम ग्रीस। इनके जो गुरु होते थे वॉज सॉक्रेट्स। नाम सुना होगा आपने, सॉक्रेट्स, सुकरात जिनका नाम है। सो सॉक्रेट्स ने अपने जितने भी भाषण दिए या जितने भी व्याख्यान दिए वो कभी लिखित तौर पे नहीं दिए। इट वॉज नॉट रिटन एट ऑल। बट प्लूटो, he used to listen him, he used to follow him. He was the disciple of Socrates, and he has written his own theories, he's written his thoughts, और वो थॉट्स आज भी बहुत रेलेवेंट है, आज के मॉडर्न एरा में भी रेलेवेंट है। इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है? उसके भी पहले, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी शुरू होने का था। ओके, so what he says about the education, the purpose of education is to give to the body and to the soul all the beauty and all the perfect। सबसे पहले तो हम यहाँ पे रोक देते हैं, all the beauty। education, the purpose of education is to give to the body and to the soul the beauty। भाई ये किस ब्यूटी की बात कर रहा है? देखिए अगर मैं इनकी बात को अगर नटशेल इनका निकालना चाहो, दो चीजें होती है। एक होती है इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक, द अदर वन इज एक्सट्रेंसिक। इंट्रिंसिक जो होती है वो आपकी क्वालिटीज, कैरेक्टर, पर्सोना, पर्सनालिटी, ये सारी चीजें जो है ये होती है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या होती है? जो आपका अपीयरेंस होता है। बट दैट डजंट मीन्स you have using heavy cosmetics, you are using heavy you know aesthetic things, and you are wearing those things, and you are now, after wearing those things, you look good, that means you are well educated। that is that is not at all। वो वैसा होता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है? वो इनका कहना ही नहीं है। जब आप इन इंट्रिंसिक वैल्यूज को डेवलप करते हैं तो अपने आप एक कैरेक्टर डेवलप होता है। आपने बहुत से लोगों को देखे होंगे, ऑन एन एवरेज दे लुक एवरेज बट स्टिल दे लुक वेरी कैरिज्मेटिक। बहुत से लोग देखे होंगे अब, मतलब दे लुक वेरी एवरेज बट स्टिल दे लुक वेरी कैरिज्मेटिक इन द क्लस्टर। बहुत से अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपको ब्लेजर्स वगैरह पहन के, बट स्टिल दे कम्स एज एवरेज, बट दे स्टिल एक छाप छोड़े जाते हैं। दे स्टिल लुक कैरिज्मेटिक। व्हाई? बिकॉज देयर इंट्रिंसिक वैल्यूज इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर फेस, that is reflecting in their body language, their personality। That's why it is showing and kind of epitome। It's showing a छाप छोड़ रहे हैं, right? एक छाप छोड़ रहे हैं, right? So that's why this is the thing about beauty and all the perfection of which they are capable of। Education provide them perfection।
देखिए हर इंसान डे बाय डे अपग्रेड होता है। हाँ, जिसने नॉलेज नहीं पिक किया, जो अवेयर नहीं रहा, जिसने खुद में कोई चेंजेस नहीं किए, वो अपग्रेड नहीं होगा। तो जो एजुकेशन पाता है इंसान, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के चाह में होता है। जो रियली में एजुकेशन को फॉलो करता है, एजुकेशन को जीता है, वो हर दिन अपने आप को अपडेट करता है, हर दिन अपने आप को अपग्रेड करता है। और वो दिखाई देगा आपको उसकी पर्सनैलिटी में, ठीक है? सो दिस इज द थिंग ही वाज टेलिंग अबाउट एजुकेशन। और बहुत से लोग होते हैं जो बहुत मतलब रूडली अकड़ के बात करते हैं, दैट शोज दैट आई एम दैट हैविंग दिस मच ऑफ डेजिग्नेशन एंड ऑल दैट दिस काइंड ऑफ थिंग। वो सारी चीजें जो है ना, आई विल से दे आर नॉट एडुकेटेड, दे आर ट्रेन्ड, they are trained managers, they are trained robotics, they are trained machines, they are not human at all। ठीक है, वो ह्यूमन नहीं होते। एंड दैट इज नॉट फ्रॉम माय साइड, दैट वाज द विजन ऑफ प्लेटो। प्लेटो कहते थे भाई, ये मैं नहीं कहता था। मैं तो छोटा सा साधारण सा इंसान हूँ। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू गाइस फॉर योर ऑल सपोर्ट। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा हम उसमें क्या देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर, जो आपको साल भर में अपॉर्चुनिटीज आने वाली है या मिलने वाली है। सेकेंडली, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस। thirdly, how to develop approach and qualities। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब आप कहोगे सर ये ठीक है, स्टडी में ये सारी ये चीजें तो हम समझ गए, ये चीजें क्या चीज है? वही तो कह रहा हूँ ना, अब तक आप लोग जो पढ़ रहे थे वो गलत तरीके से पढ़ रहे थे, अब जो पढ़ोगे वो सही तरीका होगा। ठीक है। So that's it from my end, and I would like to stop my session over here. Bye bye, guys. Take care of yourself.